آج سعد کے ساتھ رانیہ کو شاپنگ پر جانا تھا، شادی اور مہندی کا ڈریس لینے۔ اسے لگا وہ شاید اکیلے آئے، پر نایاب آپی بھی ساتھ تھی تو رانیہ نے ہانیہ کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ سعد کو کئی دفعہ نایاب نے کہا، دیکھو یہ کیسا رہے گا آپی، یار آپ دیکھ لو، مجھے پاکستانی شاپنگ کا اندازہ نہیں پلیز۔ رانیہ تم جو چاہے لے لو۔ وہ دوبارہ فون پر مصروف ہو گیا۔ رانیہ سے مخاطب ہوا اس انداز میں سلام دعا کے بعد۔ یہ پہلی بات تھی جو سعد نے رانیہ سے کی تھی۔ رانیہ کو اس کی بیزار طبیعت کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا۔ آج کے دن میں نکاح کے بعد مرد اپنی بیوی کو خوبصورتی لمحہ یا کوئی آنے والے وقت کی خوبصورت آہٹ کا احساس دیتے ہیں، پر رانیہ کو ایسا کوئی احساس نہ دے سکا سعد۔ شام تک ہانیہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سوٹ بوٹ میں چلتا رپورٹ ہے، جو ہر چیز وقت پر کرنے کا عادی ہے۔ جسے 2 بجے انہوں نے لنچ کیا، 5 اس کی ایوننگ ٹی ٹائم ہے تو ان لوگوں نے وقت پر چائے پی۔ کچھ باتیں نیاب، کچھ باتیں سعد کا رویہ سمجھا رہا تھا۔ اتنی خوش مزاج بہن کا اتنا سرور مزاج کا بھائی، اف تمہارا کیا ہوگا رانیہ بیگم؟ ہانیہ نے دل ہی دل میں سوچا اور منہ بنایا۔ وہ یہ باتیں سوچ تو سکتی تھی پر اپنی بہن کو کہہ نہیں سکتی تھی۔ رانیہ ایک خوش مزاج اور ہنسمکھ قسم کی لڑکی تھی، اس لیے ہانیہ کو افسوس ہوا اس کے لیے۔ رانیہ بھی بجھی بجھی اور خاموش تھی، پر امریکہ کا سوچ کر اس نے خود کو تسلی دی، وہاں گھومیں گے پھریں گے، دونوں سیٹ ہو جائیں گے۔ نیاب نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی۔ کئی دفعہ ہانیہ نے پیسے نکالنا چاہے جو احمد صاحب نے دیے تھے شاپنگ کے لیے، پر نیاب نے کسی چیز کو ان کو پیمنٹ نہیں کرنے دی۔ ہانیہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ 8 بجے ڈنر کرتے ہوئے بیزاری ہو رہی تھی ہانیہ کو، کیونکہ وہ رات 10 بجے ڈنر کرنے کی عادی تھے، پر سعد صاحب کی بدولت یہ بھی کرنا پڑا۔ اف کیا بندہ خود کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تھک کر ہانیہ نے رانیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ آپی آپ تو چپ کر جائیں، رانیہ نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈال کر کہا۔ وہ ہانیہ ہی کیا جو کسی کہنے سے چپ ہو جائے، اس لیے اس کے کان میں دوبارہ کہا، دن سے منہ میں کنگریاں لا کر ہی تو چل رہی ہوں، نہ سعد صاحب خود بولتے ہیں نہ کسی اور کو اتنا بولنے دیتے ہیں۔ ہانیہ نے تنزیہ طور پر سعد کو صاحب کہا، بجائے سعد بھائی کہنے کے۔ اگر دونوں بہن بھائی موبائل پر کچھ نہ کچھ دیکھ نہ رہے ہوتے تو اس طرح ہانیہ نہ بول سکتی تھی۔ اف بس کریں آپی، رانیہ نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ یوں دونوں چپ ہوئیں۔ آؤ رانیہ، ہانیہ تم بھی دیکھو، سعد کا دوست اس کے فلیٹ کی سیٹنگ کروا رہا ہے تاکہ رانیہ کو وہاں جا کر اچھا لگے، نیاب نے محبت سے کہا تھا، جس پر وہ دونوں اس کے نزدیک ہوئیں۔ اب سعد کے موبائل نیاب کے ہاتھ میں تھی اور رانیہ اور ہانیہ کو دکھا رہی تھی وہ فلیٹ کی پکچرز۔ کافی دیر وہ آپس میں بول رہی تھیں۔ اب چلیں، 10 بجے تک مجھے سونا ہوتا ہے، سعد نے بیزاریت سے کہا۔ وہ اب تک بل پے کر چکا تھا، ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ فری ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی تھک کر وہ بولا تھا۔ رانیہ اور نیاب جلدی اٹھی، اس کے کہنے کی دیر تھی، جبکہ ہانیہ مزے سے اپنے پرس چیک کر کے پھر اپنے موبائل دیکھنے لگی، جیسے کچھ ضروری ہو اس کے اندر۔ نیاب اور سعد اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ سعد کے تاثرات بیزاری لیے ہوئے تھے، جانے کیوں ہانیہ کو مزہ آ رہا تھا اس سڑو کو تنگ کرنے میں، جبکہ رانیہ اسے گھورنے لگی وہ بے نیاز بنی رہی۔ ہانیہ آپی چلیں، اب گاڑی میں موبائل دیکھ لیجیے گا، رانیہ نے دانت پیس کر کہا۔ اوکے، ہانیہ نے مصروف لہجے میں کہا۔ ایسی حرکتیں کر کے وہ سعد کو اور بیزار کر چکی تھی۔ رانیہ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا کہ وہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ وہ ایسی ہی تھی، جب وہ خود تنگ ہوتی تو دوسروں کو تنگ کر کے بیزار کر کے حساب برابر کر دیتی، وہ ایسی ہی تھی۔ چلیں اب، کہ رانیہ اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ چلو پھر وہ باہر نکلے ہوٹل سے۔ نیاب اور سعد نے گھر تک ڈراپ کیا دونوں کو۔ رانیہ نے اندر چلنے کا کہا ان کو، جبکہ ہانیہ نے ایک دفعہ بھی آفر نہ کی تھی۔ وہ بیزار چہرے لیے کھڑی رہی۔ نیاب نے سہولت سے منع کیا تھا کیونکہ سعد کے سونے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ یوں ایک دوسرے کو خداحافظ کہہ کے رانیہ اور ہانیہ گھر کے اندر آ گئیں اور نیاب اور سعد گاڑی میں چلے گئے۔ پرسوں ہمیں رانیہ کے گھر چلنا ہے شام کے وقت، سارا کے بھائی سبحان کا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ گاڑی میں اب وہ دونوں تھے۔ نیاب نے سعد کو بتایا تاکہ وہ اپنا ذہن بنا سکے، اسے جانا ہے اپنے سسرال، ورنہ اسے یہ سب جھنجھٹ لگتا۔ تو ہمارا کیا کام ہے وہاں آپی، سعد نے منہ بنا کر کہا۔ نیاب کو اندازہ تھا کہ اسے یہ سب پسند نہیں، ان سے ہماری رشتہ داری جڑی ہے، انہوں نے ہم سب کو دعوت دی ہے کیونکہ اب ان کی 2 بیٹیوں کا تعلق ہم سے جڑ گیا ہے۔ نیاب نے اپنی بات کی وضاحت کی، کیونکہ ان کا جانا ضروری ہے۔ آپ سب جائیے گا، میرا موڈ نہیں، سعد نے کہا۔ سعد تنہا ہمیشہ رہا تھا، اس لیے اسے اتنے رشتے سمجھ میں نہیں آتے تھے، اور یہاں پر تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ احمد صاحب رانیہ کے باپ ہیں یا احد۔ اگر احد صاحب باپ ہیں تو احمد کے انداز میں ولہانہ محبت رانیہ اور سعد کے لیے، اور احد صاحب کا انداز لیا دیا سا لگا سعد کو، ایسا کچھ نازیہ اور یسریٰ کا حال لگا۔ اتنی کنفیوژن تھی کہ خود کو کنفیوز ہو جانا، کون سا چاچا، کون سا باپ، کون سی خالہ کی کون سی ماں، یہی وجہ تھی وہ جانے سے کتراتا تھا۔ کیا بات ہے میرے بھائی، تم اتنے بیزار کیوں رہتے ہو؟ نیاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اوکے ڈونٹ وری، چلوں گا ساتھ، سعد نے تھک کر کہا۔
تھینکس سعد نے آپ نے خوشی سے کہا۔ اسے کسی بات کے لیے منانا بلی چوہے سے شہر کو بلانے کے متعارف تھا۔ وہ کامیاب ہو گئی تھی اسے سمجھانے میں، اس لیے وہ مطمئن تھی اب۔ تم نے پوچھا نہیں کس کے ساتھ ہو رہی زبان کی بات پکی؟ نیاب خیال آنے پر اس نے پوچھا۔ کیوں، میرا پوچھنا ضروری ہے، سعد نے شانے اچکا کر کہا۔ اب مجھے دھیان سے ڈرائیو کرنے دیں، سعد نے رش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نیاب کو افسوس ہوا تھوڑا اس کی بے حسی پر۔ مجھے یقین ہے رانیہ تمہیں اپنا جیسا بنا دے گی، شوق، چنچل احساس، سب کی فکر کرنے والا۔ اب ساری امیدیں تم سے ہے رانیہ، وہ سعد کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ کتنی دیر وہ حیران ہو کر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ بچپن سے ہی پسند کرتی تھی، جسے دیکھ کر اس کے دل کو سکون ملتا تھا۔ وہ خود اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہ اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ نائلہ بیگم نے جب اسے بتایا کہ سبحان اور اس کے رشتے کی بات گھر میں چل رہی ہے، احمد بھائی نے رشتہ مانگا ہے، تو سبحان نے اقرار کیا۔ تم کیا کہتی ہو اس رشتے کے متعلق؟ تمہیں پورا حق ہے، انکار کرو یا اقرار۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی، ان کا چہرے سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ممکن ہوا ہے۔ وہ تو خود اس کے لیے دعائیں مانگتی تھی کہ ہانیہ کے دل میں اس کے لیے محبت آ جائے۔ صبا کی محبت خود غرض محبت نہیں تھی، بلکہ محبت کا انمول جذبہ اپنے دل میں رکھتی تھی، اس لیے ہمیشہ زبان کی خوشیوں کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ جسے ہم چاہیں اس کی خوشیاں مانگنی چاہیے، یہی تو اصل محبت ہے، اور اللہ نے بن مانگے ہی اسے اس کی خوشیاں دے دی۔ صبا جانتی تھی کہ ہانیہ ایک الگ دنیا کی باسی ہے، اس کی اپنی خواہشات، خواب ہیں، وہ اپنے آئیڈیلزم کو جینے پر یقین رکھتی ہے۔ سب جاننے کے باوجود بھی وہ ہانیہ کے لیے ہر وقت دعا کرتی تھی، کیونکہ جیسی بھی تھی وہ اس کی اپنی تھی۔ صبا اس کے لیے دعا گو تھی۔ وہ اپنی ماں کو اقرار میں جواب دے چکی تھی، شکرانے کے نفل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ چند لمحے وہ خوش ہو پائی تھی، اسے اس خیال نے بے چین کیا کہیں زبان پر کسی نے دباؤ تو نہیں ڈالا جس کی وجہ سے وہ مانا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ غلط ہوگا، صبا نے خود سے کہا۔ سعد آپ نے گھونگھٹ اٹھا لیا، میری منہ دکھائی تو دی نہیں؟ رانیہ نے ساری شرم بلائے طاق رکھ کر اپنے دل کی بات کہی، کیونکہ منہ دکھائی والی رسم اس کی سب سے پسندیدہ رسم تھی شادی کی رسموں میں، اس لیے اس نے خود مانگ لیا منہ دکھائی کا تحفہ۔ رانیہ میں ایسی فضول رسموں کو نہیں مانتا، اتنا کچھ دیا ہے ہم نے، اور کوئی کمی رہ گئی ہے وہ بھی لا دوں گا۔ پوری شادی میں آپ نے گھونگھٹ نہیں کیا، سب نے آپ کا منہ دیکھ لیا، اتنا لمبا فوٹو شوٹ آپ نے ساتھ کروایا، اب کمرے میں آ کر گھونگھٹ کر لیا، اور پھر منہ دکھائی کے نام پر گفٹ لینا بھی کتنا فضول لگتا ہے۔ میں اس فضول ٹرینڈ کو فالو نہیں کرتا، سوری رانی ڈیئر۔ اور وہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ امید نہ تھی رانیہ کو ساتھ سے، وہ اس شخص کی بے حسی پر دنگ رہ گئی۔ آج گھر میں زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھی، سارا بھی آ گئی تھی کل ہی، ہمیشہ سے صبا ہر کام میں آگے آگے ہوتی تھی، آج سب نے اس کو کمرے میں بٹھایا اور کہا آرام کرتی رہیں تاکہ شام کو فریش لگے۔ صبا کو فارغ پڑھنے کی عادت نہیں، اس لیے الجھن ہو رہی تھی۔ آج سب صبا کو پروٹوکول دے رہے تھے، آج شام کو اسے تیار کرنے کی ذمہ داری ہانیہ کو دی تھی، جسے وہ دل سے نبھا رہی تھی۔ اس کا فیشل، منی پیڈی سب اس نے خود کیا، یہ یسریٰ بیگم کا حکم تھا اسے۔ ویسے بھی بیوٹیشن کا کورس اس نے کر رکھا تھا، اگر انکار کرتی تو اچھی خاصی بے عزتی ہونی تھی اس کی۔ گھر میں واحد لڑکی ہانیہ تھی، جسے پڑھنے سے لے کر سجنے سنورنے، اسپورٹس، ہر فن مولا تھی، بس ایک کوکنگ اور دوسرا صفائی اس کی جان جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ماہرانہ اسٹائل میں اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ دائرہ انداز میں جائزہ لے رہی تھی۔ پرفیکٹ ہانیہ، یو ڈیڈ اٹ۔ یہ صبا حیرت سے اس کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے اسے کندھوں سے تھام کر شیشے کے سامنے کھڑا کیا۔ صبا حیران ہوئی خود کو دیکھ کر، ہانیہ فخری انداز لے کر دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت رانیہ آئی اور خود کو کہنے سے روک نہ پائی، واؤ صبا آپی، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ صبا آپی کے بجائے مجھے کہو ہانیہ، جادو تو تمہارے ہاتھوں میں ہے جو ان کے معمولی نین نقش کو اتنا حسین بنا دیا، اس نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ہانیہ آپی آپ بھی نہ، رانیہ کو افسوس ہوا اپنی بہن کی بات پر۔ چلو رانیہ نہیں مانتی، پر صبا آپی آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اگر میں نے زبان کو نہیں چھوڑا ہوتا تو آپ کا نمبر کہاں لگنا تھا، ورنہ ابھی تک آپ تو فیس کر رہی ہوتی ریجیکشن ہی ریجیکشن۔ ہانیہ نے قدا سے اپنے خوبصورت سنہری بالوں کو جھٹکا، صبا کے چہرے پر تاریک صحرا سایہ لہرایا، اس میں کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ ہانیہ آپی خدا کے لیے چپ کر جائیں، اس طرح کسی کا دل نہیں دکھاتے، رانیہ نے چڑھ کر کہا۔ اسے سخت ناگوار گزرا ہانیہ کا یہ انداز، مانو مجھے سمجھاؤ گی، چپ کر کے بیٹھو۔ ہانیہ نے ٹوکا رانیہ کو، وہ چپ ہو گئی۔ اوکے میں چلتی ہوں، تم ٹھہرو صبا آپی کے پاس۔ ہانیہ کو جو اسے سنانا تھا وہ سنا چکی تھی، اب وہ بالکل ریلیکس ہو کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔
टीचर वाई वाई मिस यू, हनान और मनान ने एक साथ कहा। मैं भी आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ, उसने ब्लेशन लगाते हुए कहा। अपनी ड्रेसिंग पर मोबाइल सेट करके रखने के बाद वो तैयार भी हो रही थी, साथ साथ बच्चों से बातें भी कर रही थी कि बच्चों की एक भी कॉल मिस नहीं करती थी। टीचर आप कहीं जा रही हो, मनान ने पूछा। हनान की बानिस्बत मनान बहुत ज़्यादा बातूनी था, सवाल पर सवाल इसकी आदत थी। मैं कहीं नहीं जा रही, हमारे घर में मेहमान आ रहा है ना, इसलिए आपकी टीचर तैयार हो रही हैं, हानिया ने बताया। क्यों मेहमान आ रहे हैं टीचर? मनान ने एक और सवाल पूछा। अब हानिया को समझ नहीं आता इसे कैसे समझाएं कि बात पक्की की रस्म है, इसलिए इसने बात को आसान करते हुए कुछ यूँ कहा। मेरी दूसरी बहन की शादी हो रही है, इसलिए। अब वो अपनी लिपस्टिक लगा रही थी। टीचर आप बहुत खूबसूरत हैं, मनान ने कहा तो हनान ने भी तारीफ की। थैंक यू बच्चों, वो बाल बनाने लगी। दोनों बच्चों इसे देखते रहे। वो बाल बनाने के दौरान महसूस कर रही थी कि मनान कुछ कहने के लिए मुँह खोलता और दोबारा बंद कर देता, तो आखिरकार इसने खुद ही पूछ लिया, क्या बात है मनान? टीचर आपकी बहनों की शादी हो रही है, फिर आपकी भी शादी हो जाएगी? हाँ, मेरी भी हो जाएगी, इसने मज़े से कहा। कुछ सोचकर मनान ने दोबारा पूछा, फिर आप हमें नहीं पढ़ाएंगी? इसके लहजे में फ़िक्र थी। नहीं बेटा, फिर टीचर अपने घर को टाइम देंगी, टीचर की अपनी मसरूफियात होगी, फिर आप हमें भूल जाएंगी? अब हनान ने पूछा। मैं आप दोनों को कभी नहीं भूल सकती, और बेटा कुछ चीज़ें हमें मजबूरी में भी करनी पड़ती है। आप भी मुझे याद करना, मैं भी आपको याद करती रहूँगी, हानिया ने सरसरी लहजे में कहा। वो अपने हेयर स्टाइल में दोबारा मसरूफ़ हो गई। हानिया ने जो कहना था वो कह दिया, और बच्चों के दिल पर जो गुज़री इसे ज़रा भी एहसास नहीं था। दोनों की आँखों की वीरानी और उदासी ने इसे महसूस भी नहीं की, मगर ऐसा महसूस भी की होती तो इसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। कुछ देर खामोशी के बाद मनान ने कहा, टीचर आप कल आओगी ना? नहीं बेटा, मंडे के दिन आऊँगी। आपके पापा से मैंने छुट्टी ली है। इनके रोशन चेहरे उतर गए थे, पर सामने किसको परवाह थी? इनको यकीन था टीचर इनके कहने पर मान जाएंगी, पर इसके साफ इनकार पर दोनों चुप हो गए। कुछ देर के बाद मनान और हनान ने अल्लाह हाफिज़ कहा तो इसने भी रोका नहीं, अल्लाह हाफिज़ कह दिया। इसे खुद जल्दी थी बाहर जाने की। सदा की खुदगर्ज सानिया ने दोनों बच्चों को जिस दर्द से दो चार किया था, इसकी ज़रा परवाह नहीं थी। इसे हमेशा ऐसा ही होता था, वो जब भी इससे बात करते थे खुशी होती थी। अगले दिन इसके आने का सुनकर खुशी खुशी का कॉल करते थे, पर आज ऐसा ना हुआ था। वो अपना दुपट्टा सेट करती बेनियाजी से कमरे से बाहर निकली, और एक सोच ने इसे मुस्कुराने पर मजबूर किया। वो सोच ये थी कि सुभान आज तुम्हारे चेहरे पर हसरत होगी मुझे ना पाने की, मज़ा आएगा। इसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तौकीर साहब की सारी फैमिली आई थी, नायाब के साथ साथ भी आया था। अहमद साहब मुतमईन हुए इसके आने से, वरना दिल को कई तरह के वसवसे थे, पर अब इनका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। अहात और यूसरा का रवैया लिया दिया सा था, जिसका अफसोस हुआ अहमद और नाजिया को। रानिया जो अब तक खुश थी थोड़ी सी उदास हुई माँ बाप के रवैये पर। क्या अम्मी बाबा मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे? इसने दुखते दिल के साथ सोचा। इसके चेहरे की जूझ चुप बुझ गई, जिसकी दोनों मियाँ बीवी को परवाह नहीं थी। पहले सबा को बिठाकर रस्म की गई। नाज़िया बेगम ने इसे लाल दुपट्टा उड़ा दिया, एक सोने का कंगन पहनाकर बात पक्की की। फिर सबने मिठाई खिलाई इसे। हानिया हैरान हुई नाज़िया बेगम की इतनी तैयारी पर। अभी इस रस्म पर उन्होंने अच्छे खासे गिफ्ट्स बनाए थे सबा के लिए। जाने क्यों इसे जलन का एहसास हुआ। यूसरा ने सबा को प्यार किया, उसके बाद आकर हानिया माथा चूमा। वह हैरान हुई, तुमने मेरा मान रखा, इतना अच्छा तैयार करवाया सबा को, मुझे बहुत खुशी हुई। पहली दफ़ा ये युसरा बेगम ने किसी बात से इसे सराहा था जिसकी वजह से वो बहुत खुश हुई, वरना इसकी माँ को तो सदा हर खूबी सिर्फ सबा में ही नज़र आती थी। आन्या के अंदर जो जलन का एहसास उभरा था वो कम होता हुआ महसूस हुआ, और इसके पास जाकर बैठी कुछ पिक्स बनाई सबने। सारा बेइंतहा खुश थी कि इसके भाई ने बेहतरीन लड़की का इंतखाब किया अपने लिए हम सफ़र के तौर पर कुछ कुछ हैरान भी थी कि कैसे इसके भाई के सर से हानिया का भूत उतरा। ये बात भी काबिल गौर थी। सबा को अब अंदर ले जाओ, नाज़िया बेगम ने कहा। रानिया सारा अंदर लेकर गई। अब सुबान को बिठाकर रस्म की गई। असम साहब ने इसे मर्दाना शॉल पहनाई और मिठाई खिलाई। फिर सबने बारी बारी मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। इस सब के दौरान साथ बेजार से बैठा रहा, जबकि दूसरी तरफ सारा और फयाज की मस्तियाँ उरूज पर थी। रानी जो हमेशा से हर जगह शरारत में आगे रहती थी, आज खामोश थी। शायद साथ की खामोशी और बेजारियत का इस पर असर था। वो चाहकर भी वैसी खुशी और मुतमईन नहीं लगी जिसे जैसे सारा और फयाज थे। कुछ उदासी की वजह से माँ बाप का रवैया भी था। बहरहाल फिर खाने का दौर शुरू हुआ। खाने के बाद चाय कॉफ़ी का दौर चलता। इससे पहले नयाब ने मुआज़रत की और दोनों के जाने का अंदिया दिया। वो और साथ घर के लिए रवाना हुए। सलाम दुआ से ज़्यादा रानी और साथ की बात ना हो सकी। यहीं अहमद साहब ने अनाउंस किया कि रानिया की मेहंदी की रात सुबान और अम्बा सबा की बाकायदा मंगनी की रस्म भी होगी, जिस पर सबने खुशी का इजहार किया। वैसे भी मेहंदी का फंक्शन इन लोगों ने किसी बैंक्वेट के बजाय अपने घर के आंगन में रखा था।
احمد صاحب والے روایتی قسم کے لوگ تھے، اس لیے اپنے گھر کی بیٹی کو اپنے آنگن سے رخصت کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ توقی صاحب نے کہا تھا بینکویٹ کے لیے وہ جب سب مینیج کر لیں گے، پر اس بار احمد صاحب نے سہولت سے انکار کیا اور کہا ولیمہ ان کا فنکشن ہے، وہ جہاں رکھیں، پر مہندی اور شادی لڑکی والوں کا فنکشن ہے اور وہ اپنے آنگن میں رکھیں گے۔ ان دو ٹوک انداز پہ توقی صاحب کو ماننا پڑا۔ نیاب اور سعد کے ساتھ توقی صاحب بھی اٹھے جانے کے لیے، جبکہ سارہ اور فیاض کا ابھی اور بیٹھنے کا ارادہ تھا۔ یسریٰ اور احد صاحب اپنے کمرے میں تھے، بہت رات ہو گئی تھی، اب آرام کا ارادہ تھا ان کا۔ اسی وقت دروازے پہ نوک ہوئی، دروازہ یسریٰ بیگم نے کھولا۔ سامنے احمد صاحب اور نازیہ کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ اتنی رات کو آپ لوگ یہاں، خیریت تو ہے؟ احد صاحب کے لہجے میں حیرت تھی اپنے بھائی بھابھی کو دیکھ کر۔ کچھ باتوں کو کہنے کے لیے وقت نہیں دیکھنا چاہیے، جانتے ہیں بہت رات ہو گئی ہے اور بات بھی ضروری تھی اور کرنا بھی لازمی ہے، احمد صاحب نے کہا۔ جی بھائی کہیں۔ دونوں آ کر صوفے پہ بیٹھے، جبکہ یسریٰ اور احد بیڈ پر بیٹھ گئے۔ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، نصیب سے کم یا زیادہ کبھی کسی کو ملا ہی نہیں میرے بھائی۔ رانیہ بیٹی کو الزام دینا چھوڑو دو، سبحان کے نصیب میں صبا تھی اور رانیہ کے نصیب میں سعد۔ اس زندہ حقیقت کو تسلیم کرو، اپنی بیٹی کو اتنا دکھ اور تکلیف مت دو، اسے خوشی خوشی وداع کرو۔ کیسے چڑیا جیسی چاہتی تھی ہماری رانیہ، تم دونوں کی لاڈلی بیٹی ہے، تم دونوں کی بے پرواہی نے اسے مجھا کے رکھ دیا۔ احد ذرا غور کرو اس بات پر۔ بھائی آپ کو جیسا لگتا ہے ایسا کچھ نہیں، اب تو دونوں کا نکاح ہو گیا، ہم تو چپ ہیں، مطمئن ہیں، وہ اپنی خوشی حاصل کر چکی ہے، احد صاحب نے نارمل لہجے میں کہا۔ اسے پیار کرو، بہت محبت ہو، اتنی دور پردیس میں جا رہی ہے ہماری چڑیا، جتنا ہو سکے اسے ٹائم دو اپنا، یہی تو لمحے جو اس کی خوبصورت یادوں میں رہیں گے، احمد صاحب نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ یہ پردیس اس نے خود اپنے لیے چنا ہے، اسے ہماری دی ہوئی یادوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر دیکھنے کے لیے اپنی خوشیوں کے لیے جا رہی ہے، وہاں جا کر یہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی دوسری دنیا بسائے گی اور اپنے خوابوں کو جیے گی۔ کیا یہ کم ہے جو ماں باپ نے اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے خواب پورے ہونے کا جشن کرے، آپ فکر نہ کریں، وہ بہت خوش ہے اپنی منمانی کر کے، آپ خود اس کی فکر میں ہلکان نہ کریں اور اسے اپنی خوشی میں ہمارا اداس ہونا کہاں نظر آتا ہوگا، رہنے دیں اسے اپنے خوابوں اور خواہشوں میں مگن۔ احد صاحب کی کئی بار پر احمد صاحب کتنی دیر شوق ہو کر دیکھتے رہے، ان کی باتوں نے احمد صاحب کے حواس سلپ کر دیے، ان کی تلخ بات پر ان کو افسوس ہوا، کہنے کے لیے کتنا کچھ تھا، پر ایسے لگ رہا تھا کہ الفاظ کہیں گم ہو گئے ہیں، شاید کبھی کبھی کہنا اور سننا دونوں رائے گا چلا جاتا ہے، اس لیے اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ دونوں میاں بیوی جس مان سے آئے واپسی میں مایوسی تھے، وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، جن کو احد صاحب نے نہ روکا۔ احمد صاحب نے کہا تو بس اتنا کہ بہت رات ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے تم دونوں کو آرام کرنا چاہیے اور ہمیں بھی آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ احد صاحب اور یسریٰ نے بھی کچھ نہ کہا، ان کو کمرے سے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ کمرے سے باہر نکل کر ان کی نظر رانیہ پہ پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ اپنے باپ کی زبان کے کہے تلخ الفاظ نے اسے اندر ہی اندر توڑ دیا تھا، پر لب خاموش تھے۔ اداس چہرہ لیے پلٹ کر چلی گئی رانیہ، وہ دونوں چاہ کر بھی اسے روک نہ سکے، کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے کوئی تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں تھا رانیہ کے لیے، وہ خود بھی بے بسی کے انتہا پر محسوس کر رہے تھے۔ وہ گمسم کھڑا ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا، یہ دوسری دفعہ ہوا ولید خان زادہ بے بسی کی انتہا پر کھڑا تھا، اس کے دونوں بچے بیمار بستر پہ پڑے تھے اور 2 دن سے پیٹس ڈاکٹر کی ٹیم ان کا کیس گھر پر دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں، وہاں زیادہ اچھی دیکھ بھال ہو سکتی ہے، ڈاکٹر سلمان نے کچھ سوچ کر کہا۔ یہاں جو فیسلٹی کہیں گے وہ اویلیبل میں کر لوں گا، آپ صرف حکم کریں، مجھے وحشت ہوتی ہے ہاسپٹل کے ماحول سے، اس نے بے بسی سے کہا۔ وہ مستبرد تھا، اتنا شاندار مرد اپنے آپ سے لاپرواہ، بکھرے بال، شکن زدہ کپڑے، سمپل بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس کھڑا تھا، بچوں کی فکر میں گھل رہا تھا، جس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر ایک دنیا رشک کرتی تھی، آج وہ قابل رحم لگ رہا تھا۔ وہ جو سب کو حکم دیا کرتا تھا، آج ان کے حکم کا منتظر تھا کہ شاید ان سے ان کا کوئی حکم بجا لا کر اپنے بچوں کی طبیعت ٹھیک کر سکے۔ 2 دن نے اسے پریشان کر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں، 2 دن اور دیکھتے ہیں، آج تقریباً سب ضروری بلڈ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، شاید کچھ اندازہ ہو سکے کیوں فیور نہیں اتر رہا، اوپر سے اتنی شدید کمزوری، حیرت کی بات ہے۔ ڈاکٹر نے تشویش کا اظہار کیا۔ ٹیم میں سب سے بڑے کنسلٹنٹ نے ولید خان زادہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے گرم جوشی سے ولید خان زادہ نے ملایا۔
थैंक यू डॉक्टर, वलीद खानज़ादा ने कहा। दो नर्सेज दोनों बच्चों को देख रही थी। अभी वलीद इनके कमरे की तरफ गया। हनान जाग रहा था पर घुट-घुट के रो रहा था, जबकि मनान सोया हुआ था। वलीद ने पूछा भी, फिर भी वो कुछ ना बोला। थोड़ी देर रोकर फिर खामोश हो गया। इसका दिल तड़प उठा अपने बेटे की इस हालत पर। वो पूछता रहा, क्या हुआ, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा वगैरह, पर वो कुछ भी इसे जवाब नहीं दे रहा था। वैसे भी हनान कम बोलने का आदी था, इसलिए बाप से कुछ कह ना सका। वलीद खानज़ादा को अफ़सोस हुआ। परसों रात उन्होंने कहा था, टीचर हानिया को कहीं यहाँ आए, हम इनको मिस कर रहे हैं, इनके आने से अच्छा लगता है हमें। इस पर इसे शदीद गुस्सा, दोनों को डांटा, फिर प्यार से समझाया दोनों को कि वो अपनी बहन की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ है, इनके पास टाइम नहीं है, वो नहीं आएंगी। आप कहेंगी वो ज़रूर आएंगी, मनान ने ज़िद्दी लहजे में कहा। वो वैसे भी अपनी बात कहने का आदी था, जबकि हनान खामोश हो जाता था इनके ज़रा डांटने पर। बस वो नहीं आएँगी। अगर अब आप लोग ऐसी ज़िद की तो इनको मना कर दूँगा, वो यहाँ ना आएँ फिर कभी। काफ़ी समझाने पर वो जब ना माने तो उन्होंने धमकी दी दोनों को। अगले दिन सुबह को पहले हनान बीमार हुआ, शाम तक मनान को भी बुखार ने जकड़ लिया। अब दोनों को बीमार देखकर बाप का दिल खून के आँसू रो रहा था। हनान को चुप करवा के वो बाहर आया। इसी वक्त एक नर्स इसके पीछे आई। ये वही नर्स थी जो रात को इनके पास ड्यूटी दे रही थी। रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वही होती थी बच्चों के साथ। सर, क्या आप 2 मिनट रुक कर मेरी बात सुन सकते हैं? नर्स जल्दी से बोली। वो जो अपने ध्यान में जा रहा था, इनकी आवाज़ पर रुका, हैरत से मुड़ा इस तरह इनके बुलाने पर। अगर वो परेशान ना होता अपने बच्चों के लिए तो शायद वो किसी नर्स को अपना कीमती वक्त ना का देता। इस वक्त कोई बिजनेस टाइकून नहीं, एक बेबस बाप खड़ा था। जी कहिए। सर, मुझे लगता है आपके बच्चे को कोई बात नहीं इतने सर, मुझे लगता है आपके बच्चे को कोई बात ने इतना परेशान किया हो जो वो शायद आपके डर से कह नहीं रहे, इसलिए घुटन का शिकार है। अभी आपने देखा ना कैसे आपका बेटा घुट-घुट के रो रहा था। पिछली 2 रातों से इनको ऐसे ही देख रही हूँ। आप प्लीज़ इनको एतमाद में लेकर मालूम करें कि कौन-सी बात इनको कचेवे लगा रही है अंदर ही अंदर। नर्स ने जल्दी-जल्दी अपनी बात कही क्योंकि वो जानती थी ये बड़े लोग हैं, इनका एक-एक मिनट कीमती है। नर्स घबराई हुई थी। थैंक यू सिस्टर फॉर योर कंसर्ट। वलीद खानज़ादा लंबे ढक भरता हुआ चला गया। अगले दिन वलीद खानज़ादा ने गाड़ी भेजकर मिस हानिया को बुलवाया। उन्होंने खुद कॉल करके बुलाया, जिस पर वो हैरान होती हुई आ गई थी। बच्चों को बीमार देखकर वो खुद परेशान हो गई। इसे यकीन ना आया 2-3 दिनों में क्या हुआ जो इतना बीमार हो गए। इसे अपनी लापरवाही पर रह रहकर गुस्सा आया। 3 रातों से उन्होंने कॉल ना की थी, तो इसने भी एक दफ़ा कॉल ना की थी। वैसे भी वो ब बच्चे खुद से कॉल करते थे, वो इन्हें नहीं करती थी क्योंकि इसकी अपनी इतनी मसरूफ़ियात थी। वैसे भी रानिया के साथ-साथ अब सबा के लिए भी नाज़िया बेगम ने शॉपिंग की ज़िम्मेदारी हानिया और सारा पर लगाई थी क्योंकि इन दोनों की चॉइस बेहतरीन थी। यूँ तो हानिया ने कभी खुद से बच्चों को कॉल का ना कहा था, बल्कि बच्चों ने खुद इससे इजाज़त माँगी थी कि वो इससे बात करेंगे। अगर वो कॉल करे तो इसने भी इजाज़त दे दी थी। इसने घर फ़ोन करके कह दिया इसे आने में लेट होगी और वलीद खानज़ादा इसे बता कर गया, इसे ऑफ़िस में ज़रूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ, पर जब तक वो ना आए तब तक वो घर ना जाए। आज जब वलीद खानज़ादा ये सब कह रहा था, इसके अंदाज़ में आज़ी थी, कोई गुरूर नाम की चीज़ ना थी इसके लहजे में आज। हानिया शॉक हुई थी इसके इस अंदाज़ पे। इतना जल्दी करने के बावजूद 3-4 घंटे लग गए थे इसे क्योंकि काम इतना पेंडिंग था। अब इसे हानिया का सोचकर शर्मिंदगी हो रही थी। वो सोच चुका था इसे माज़रत करेगा इतना लेट करने पर। वो घर आया तो डॉक्टर सलमान पेट्स स्पेशलिस्ट बैठे थे। रज़िया ने कहा, डॉक्टर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगा। इतने बड़े डॉक्टर को वेट करना पड़ा। सॉरी डॉक्टर, आपको वेट करना पड़ा, उन्होंने कहा। इट्स ओके मिस्टर वलीद खानज़ादा, डॉक्टर ने मुस्कुराकर फॉर्मल अंदाज में कहा। सब खैरियत तो है? रिपोर्ट्स में क्या आया बच्चों के? अब के वो थोड़ा फ़िक्रमंद भी हुआ कि ज़रूर कुछ गलत होगा जो डॉक्टर इनका वेट करने पर मजबूर हुआ। रिपोर्ट सब नॉर्मल हैं। वलीद खानज़ादा को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में इनको बताया। तो फिर आइए मेरे साथ, डॉक्टर ने कहा। वो और डॉक्टर बच्चों के कमरे की तरफ बढ़े। बच्चों का इलाज ये है, डॉक्टर ने कहा। दरवाजे की चौखट पे खड़ा वो शौकी हो गया। दोनों बच्चे खिलखिला रहे थे। हानिया के पास बैठे सामने लूडो पर इनकी गेम चल रही थी। नर्स फ्रूट की प्लेट पकड़े हुई थी जिसमें से फ़ोर्क की मदद से दोनों को फ्रूट बारी-बारी खिला रही थी। हानिया वो भी मज़े ले ले के खा रहे थे।
1 मिनट में इस तरफ आए मिस्टर वलीद खानज़ादा। डॉक्टर के कहने पर वो चौंक कर इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो दूसरे कमरे में आकर बैठे थे। गर्म चाय की उड़ती भाप को वो बखौर देख रहा था, जो अभी मुलाज़िमा ने रखी थी। डॉक्टर सलमान और इसके सामने, देखिए मिस्टर वलीद खानज़ादा, मुझे पहले ही मेरी स्टाफ नर्स ने कहा था कि किसी ख़ास बात को लेकर बच्चे परेशानी का शिकार हुए हैं, जिस वजह से इतना बीमार हो गए। कोई दवा असर नहीं कर रही। मेरी बात याद रखिएगा, दवा भी तब तक असर नहीं करती जब तक कि इंसान खुद फ़ायदा नहीं चाहता इससे। और मुझे लगता है वजह यही होगी। बच्चे मासूम होते हैं, वह मुश्किल से किसी के साथ अटैच होते हैं। अगर हो जाएँ तो फिर इनसे दूर करना बच्चों को बीमार कर देता है। बाकी आप समझदार हैं। उम्मीद है आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। डॉक्टर को खामोशी से बगौर सुनता रहा, पर कुछ कह न सका। वो दुखी था। काश मिस हानिया से बच्चों की तरबियत का ना कहता, ना वो ज़्यादा टाइम देती, ना बच्चे इसके आदी होते। अब बच्चों के जज्बात को रोकना नामुमकिन था, ये इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था। जो मंज़र वो कुछ देर पहले देख आया था, इसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वक़्त इसके हाथ से निकल चुका था। बच्चों को रोकना इनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल सकता था, और वो अपने बच्चों के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। इसकी चुप को देखकर डॉक्टर ने दोबारा कहा, ताकत की कुछ मेडिसिन लिख दी है मैंने। फ़िलहाल फ़ीवर भी नहीं है, अगर आए तो दवा दे दीजिएगा। 1-2 दिन स्टाफ को रहने देते हैं यहाँ पर। मेरी मर्ज़ी हो तो बुला लीजिएगा, मेरी ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप मुझे बुलाने की नौबत नहीं आएगी। फिर भी तीसरे दिन दिखाइएगा बच्चों को मुझे। जी बिल्कुल, वलीद खानज़ादा ने मुख्तसर जवाब दिया। चाय का कप होठों से लगाया। कुछ देर में चाय पीकर डॉक्टर चले गए। वलीद खानज़ादा खुद इनको दरवाजे तक छोड़ने गए थे। फिर वलीद खानज़ादा ने हानिया का शुक्रिया अदा किया, जिसने अपना इतना वक़्त दिया। इसके बाद हानिया को रात 8 बजे डिनर करवाया, जिसमें बच्चों ने से भरपूर कंपनी दी। वलीद खानज़ादा पर आज एक दिन में हैरतों के कई पहाड़ टूटे थे। इसके कानों में अपनी खाला के कहे अल्लफ़ गूंजे, जहाँ से मैं देख रही हूँ वक्त दूर नहीं, तुम्हारे बच्चे खुद तुमसे कहेंगे जो मैंने कहा है। इसके अंदर का कर्ब जागा। कशफ की जगह किसी को देना नामुमकिन था, पर शायद ये जहर खून भी पीना मुझे पड़ेगा, वलीद खानज़ादा ने सोचा। फिर हानिया को ड्राइवर और रज़िया भी घर छोड़ने गए थे। अगला दिन जुम्मे का था। ये दिन वो कब्रिस्तान ज़रूर जाता था अपनी कशफ के पास। कितनी देर वो चुपचाप बैठा रहा। आज इसकी आंखें नम हुई, जिसे कल की बात हो जब वो और कशफ जुदा हुए हों। मुझे माफ़ करना कशफ, जो मैं करने जा रहा हूँ हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, और तुम्हें खोने के बाद बच्चों को खोने की हिम्मत नहीं। ताउम्र तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। ज़िंदगी में कोई भी आ जाए, पर मेरी रूह की मलकीन तुम हो और रहोगी। फिर कितनी देर से गुफ्तगू रहा, फिर चला गया, क्योंकि 4 बजे इसने हानिया को टाइम दे रखा था मुलाकात का। आज इससे बात जो करनी थी। इस वक्त वो स्टडी में बैठा मिस हानिया का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। कल रात जब इसने बच्चों से पूछा था, कौन सी बात से परेशान हैं आप दोनों, वलीद खानज़ादा के फ़ोर्स करने पे मनान ने डरते हुए कहा, पापा मिस हानिया को हमेशा के लिए यहाँ लेकर आ जाएं, वरना इनकी सिस्टर की तरह वो भी शादी करके चली जाएंगी हमसे दूर। बच्चे मासूम होते हैं, कभी कभी जो बात हम सरसरी लहजे में कहते हैं बच्चे उनको दिल पर ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ दोनों के साथ हुआ था। एक तरफ हानिया ने जब अपनी शादी के लिए कहा तो डर गए थे, और ऊपर से इनके बाबा का सख्ती से मना करना इनको बीमार कर गया। वलीद खानज़ादा सोचों के भंवर में फंसा था। मैं नहीं रह सकता इनके बगैर, प्लीज़ पापा, मन्नान ने फिर कहा। मन्नत भरा अंदाज था इसका। मैं भी नहीं रह सकता पापा, हनान ने डरते हुए कहा, और इसके सीने से लग गया। दोनों बच्चों की बेबसी से कही बात पर वो एक फ़ैसला कर चुका था। इससे ज़्यादा इन दोनों को तकलीफ़ देने का वो सोच भी नहीं सकता था। बेफ़िक्र हो जाओ पापा, बेफ़िक्र हो जाओ पापा, पूरी कोशिश करेंगे आपकी टीचर को हमेशा के लिए आपके पास ले आएँ। वलीद खानज़ादा की बात पर दोनों के चेहरे खिल उठे। थैंक यू पापा, यू आर ग्रेट, दोनों ने एक साथ कहकर इसे गले लगाया। इन दोनों की मुस्कुराहट पर वो बेइंतहा खुश हुआ था। इसी वक्त मिसानिया नॉक करती हुई इसकी स्टडी में आई। सलाम दुआ के बाद वो सोफ़े पर बैठी थी। वलीद खानज़ादा ने इसका चेहरा बखौर देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे ज़्यादा आपको चाहते हैं या आपने मेरे बच्चे को ज़्यादा प्यार दिया है। वो ऑलरेडी हैरान थी इसकी इस तरह बुलाने पर। अब इनकी बात सुनकर शॉक हुई। जी सर, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। इसने जिस अंदाज में कहा था वो हानिया के लिए हैरत का बाइस था। क्या मुझसे शादी करेंगी मेरे बच्चों की खातिर, वलीद खानज़ादा ने धीमे लहजे में कहा। वट वह हैरान हुई। इतनी जल्दी ये सब होगा वो सोच नहीं सकती थी। इतना मगरूर शख्स इस आजिज़ी के साथ प्रपोज़ करेगा, हानिया ने सोचा न था। इसके कान साए साए कर रहे थे। मैं एक और वाज़ेह करता चलूँ कि ये शादी सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मेरी दुनिया, मेरी कुल कायनात मेरी बीवी कशफ है। मैं मोहब्बत के मामले में ज़रा शिद्दत पसंद वाक़या हुआ हूँ, इसलिए इतने साल शादी नहीं की, क्योंकि मुझे कभी बीवी की कमी ही ना महसूस हुई, और आज भी मुझे बीवी की ज़रूरत नहीं, पर मेरे बच्चों के आगे मजबूर होकर आपको प्रपोज़ कर रहा हूँ। आपको यहाँ दुनिया भर की आसाइश
आराइश मुहैया करूँगा, दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में होगी, सिवाय मेरे। मुझे आपसे खुद से कोसों दूर पाएँगी। मेरे अलावा सब आपका होगा, पैसा, बैंक बैलेंस, इनमें किसी भी चीज़ के लिए कभी मैं इनकार नहीं करूँगा। बस मुझे इस दायरे से दूर रखिएगा। मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ, चाहता तो आपको धोखा देकर प्रपोज़ कर सकता था, अगर करता तो ये ज़्यादती होगी, इसलिए सब सच्चाई से बताकर आपसे पूछता हूँ, क्या सब जानकर भी आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? आखिरी फैसला आपका होगा। वलीद खानज़ादा की इतनी लंबी तकरीर सुनने के बाद भी वो वहीं बैठी रही। वो इसे मुंतज़िर नज़रों से देख रहा था। फिर आपका क्या ख़्याल है इस प्रपोज़ल के बारे में? वलीद खानज़ादा ने पूछा। वो उसका चेहरा देखती रही हैरत से। आपने पूछा था मैं ज़्यादा बच्चों से प्यार करती हूँ या वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसका जवाब ये है कि बच्चे मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं। पर हानिया ने इसे एक और बात पे हैरान कर गई। वलीद खानज़ादा को अफ़सोस हुआ, कोई है जो इसे हमेशा चौंका देती है। इसकी जगह कोई और होता तो वलीद खानज़ादा को ये कहता कि वो ज़्यादा प्यार करती है बच्चों से, ताकि वलीद खानज़ादा ज़्यादा इम्प्रेस हो। पर हानिया का हर अंदाज़ इसे हर बार हैरान ज़रूर करता था। पर क्या मिस हानिया, इसने चौंक कर पूछा, आप मेरा रिश्ता माँगेंगे उस मान और शान से कि मेरे जानने वाले मेरे नसीब पर रक्श करें? जिस तरह की आपने मुझसे बात की है, इसे सुनकर कोई वालिदैन अपनी बेटी नहीं देंगे। बस इतनी सी गुज़ारिश है, उम्मीद है इतना आप कर सकते हैं मेरे लिए। इसमें आपकी भी इज़्ज़त है और मेरी भी। हानिया का लहज़ा दो टोक और मुतवाज़िन था। कुछ हद तक वलीद खानज़ादा को इसकी बात सही लगी। तो फिर अब कब आ सकता हूँ मैं आपके घर? मुझे जल्दी है, ताकि बच्चों की तरफ से मैं बेफ़िक्र हो सकूँ। मुझे 15 दिन के लिए लंदन भी जाना है, इसने पूछा। ऐसा लग रहा था कोई बिज़नेस डील हो रही थी, दोनों के लहजे ऐसे थे। अगर वलीद खानज़ादा का अंदाज़ प्रोफ़ेशनल नल था, तो हानिया का भी अंदाज़ शादी को लेकर बिज़नेस डील जैसा था। ये डिपेंड करता है आप किस तरह रिश्ता माँगते हैं, जो मेरे पेरेंट्स खुशी-खुशी आपकी बात मानेंगे। हानिया ने कंधे उचकाए, वो हैरान था इस लड़की पर। मैं ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहता, सिंपल निकाह और रुख़सती, वलीद खानज़ादा ने कहा। और वलीमा? हानिया ने पूछा। वो इस लड़की की जुर्रत पर चौंके बिना ना रह सके। वो मेरे मेयार का होगा, बेफ़िक्र है मिस आनिया, इस शादी को अपने सर्कल में छुपा के रखना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। शानदार अंदाज़ में होगा वलीमा, एक दुनिया याद रखेगी। मैं आपको बता चुका हूँ साफ लफ्ज़ों में, मुझे बीवी की ज़रूरत नहीं, पर दुनिया के लिए आप मेरी बीवी होंगी और मेरे बच्चों को माँ का प्यार देंगी। बदले में आपको मेरा स्टेटस, पैसा, गाड़ी, हर चीज़ मिलेगी। वलीद खानज़ादा के लहजे में अपने रुतबे का खुरूज झलक रहा था। आपने बताया नहीं मिस आनिया, मैं कब आ सकता हूँ आपके घर? परसों आ जाएँ, तब तक मैं घर वालों से बात कर लूँ। ठीक है, वो उठकर जाने लगी। 1 मिनट मिस आनिया, कुछ देर बच्चों के पास ठहर जाएँ, फिर आप चली जाइएगा। वलीद खानज़ादा ने कुछ सोचकर कहा। जी, हानिया ने दरवाज़े की तरफ बढ़ी। वो इसे जाता देखता रहा। ज़हन में कई सोचें आ रही थी, कहीं जा रही थी। वो सब कुछ झटक कर सिर्फ़ एक बात सोच रहा था। ये शादी इसके बच्चों की खुशी है, इसलिए ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं लगी इसको। अहमद साहब हैरान थे इस तरह सुभान के बुलावे पर। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे, जहाँ इसने वलीद खानज़ादा के रिश्ते की बाबत बताया। अहमद साहब हैरान हुए, इस शख्स को कौन नहीं जानता था। सुभान का मकसद इनको राज़ी करना था, जिसके लिए कुछ देर पहले हानिया ने इससे यहाँ मुलाकात की थी। हानिया ने कुछ यूँ कहा था, सुभान तुम जानते हो अम्मी बाबा ऑलरेडी रानिया के रिश्ते को लेकर नाराज़ हैं। मैं नहीं चाहती मेरे साथ यही हो। अगर तुम ये बात सँभालो तो शायद अम्मी अब्बा को दुःख ना हो। इसने उँगलियाँ मरोड़ते हुए कहा था। देखो हानिया, जहाँ हमारी सोच नहीं जा सकती, तुमने वो मुमकिन किया है, तुम सब कर सकती हो। अपने माँ-बाप को भी तुम मना लोगी, तुम मना सकती हो, उनको खुद मना लो, सुभान ने सहूलत से कहा। हन्या को ढूँढने से भी इसके चेहरे पे कोई तंज़ नज़र ना आया, पर बात तो इसने तंज़िया ही कही थी। बहुत ज़ब्त करने के बाद बोली, मैं अपने माँ-बाप को दुःख नहीं देना चाहती, अगर साथ नहीं दे सकते तो ताया-अब्बू से मैं खुद बात कर लूँगी, वही सबको समझा और मना सकते हैं। हुँ। रहने दो, मैं बात कर लूँगा, सुभान ने कहा। शुक्रिया, यही उम्मीद थी तुमसे। ओके, अब चलती हूँ, कल आएँगे वो, सब सँभाल लेना। वो हैरान हुआ इसकी चालाकी पर। अपना काम निकलने के बाद किसी मंज़र में वो नहीं ठहरती थी। रुको 1 मिनट, इसके कहने पर वो रुकी और दोबारा बैठी। हानिया ने हंगारा, जिसे इसे कह रही हो कहो। इतना तो मैं समझता हूँ तुमने बच्चों को सीढ़ी बनाकर शिस्त तक पहुँची हो। अगर ये सब किया है तो इन बच्चों को तोड़ना मत। अपनी ख्वाहिशों के पूरे होने के बाद इन बच्चों को दूध में से मक्खी की तरह निकालने की गलती मत करना। अगर बच्चों को ज़रा सी तकलीफ़ दी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुभान ने तंबीह की। सुभान, वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं जो मुझे ऐसा कह रहे हो। हानिया भड़की इसकी बात पर। बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे किसी के भी हों। सुभान के लहजे में बच्चों के लिए प्यार था। इतना बदगुमान ना हो मुझसे, कितना घटिया सोचो मेरे बारे में। वैसे जो कुछ तुमने कहा है, वलीद खानज़ादा कहे तो समझ में आता है, तुम्हारा कहना मुझे तो ऑकवर्ड ही लग रहा है। हानिया ने कंधे उचकाए, लम्हे में कुछ संभाल कर रिलैक्स अंदाज में बोली थी।
वो शख्स तुम्हारे दिखावे का कायल हो गया, इसलिए इसने ऐसी कोई बात तुमसे नहीं की होगी। पर मेरा और तुम्हारा तो बचपन का साथ है ना, और मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जान सकता है। सुबहान ने आखिरी अल्फाज तंजिया लहजे में कहे थे। इसी हानिया को तुमने शिद्दत से चाहा और आज भी तुम्हारी आंखों में पसंदगी झलकती है, तभी तो मेरे एक बुलावे पर चले आए हो। हानिया ने कहकमा लगाया और वो बेबसी से अपने हाथों की मुठ्ठियां बींच गया। इस जिंदा हकीकत को जुटलाना नामुमकिन है। आज भी इसे देखकर दिल जोरों से धड़कता है। दिल इसकी एक पुकार पर इसकी तरफ हमकता है। दिल बेख्तियार था हानिया के मामले में। सुबहान को नफरत सी हुई खुद से। वाकई धोखा हसीन और खूबसूरत होता है, सुबहान ने सोचा। हानिया अपना बदला ले गई। जो कुछ देर पहले इसे बेइज्जत किया था लफ्जों से, अब इस पर भी तंज छोड़ कर गई। ऐसी ही थी वो। सॉरी सुबहान, मेरा ऐसे कोई इरादा नहीं था। तुमने मुझ पर तंज करके बेअदबारी दिखाई तो मैंने भी खुद को रोक ना पाई। उम्मीद करती हूँ इतनी सी बात का बुरा मानकर मदद से इनकार तो नहीं करोगे। इसने एक अदासी से अचानक अपना लहजा बदला था। अब मौजत ख्वाना अंदाज अपनाया हुआ था इसने। आखिर में उम्मीद से इसकी तरफ देख रही थी। बेफिक्र हो जाओ, एक दफ़ा हाँ करने के बाद अपनी बात से नहीं फिरता मैं। सुबह ने तसल्ली दी इस मतलब परस्त हसीना को। ओके तो फिर खुदा हाफिज, हानिया ने कहा। अल्लाह हाफिज सुबहान कहकर इसे जाता हुआ देखने लगा। फिर अहमद साहब को हर तरह तसल्ली देने लगा कि वो समझाए घर वालों इस रिश्ते के लिए। वलीद खानज़ादा में ढूंढने से कोई ऐप ना मिला इनको, क्योंकि असल चीज़ अमीर आदमी का किरदार होता है। इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन कभी कोई अफेयर नहीं चलाया, ख़ानदानी बंदा था। अगर कुछ मसला था तो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप होना। पर अब आहा साहब को मनाना था, जिसका सोचकर अहमद साहब को फ़िक्र हुई थी। इसी रात को अहमद साहब तो सुबहान ने मिलकर आहा साहब को बताया, इनको समझाते रहे। आखिरकार बड़े भाई ने छोटे भाई को राज़ी कर लिया कि कल वलीद खानज़ादा आएगा रिश्ता मांगने के लिए। अगला दिन खामोशी से शुरू हुआ। जिस वक्त वलीद खानज़ादा और उसकी खाला आए थे, इनका प्रोटोकॉल देखकर पड़ोसियों की मुंह में उंगलियां आ गईं। 3-4 गाड़ियां आई थीं। गार्ड्स ने ढेर सारा सामान उतार कर रखा। सहन में अच्छी खासी जगह भर गई थी। हर फ्रूट की एक टोकरी लाए थे। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ। हानिया ने खिड़की से देखा तो हैरान रह गई। वलीद खानज़ादा का ये म्यार है, वो हैरान ही हुई थी सोचकर। जिस मोहब्बत से वलीद खानज़ादा की खाला ने रिश्ता मांगा था वो काबिल तारीफ़ था। वलीद खानज़ादा का मिलने का अंदाज़, हर एक से बात करने का अंदाज़ आहा साहब को मुतमईन कर गया। वो शख्स न सिर्फ छा जाने की पर्सनैलिटी रखता था, आज पता चला था कि वो लोग इम्प्रेस करना का भी खूब जानता था। हानिया जिसको डाउट था ये मखरूर शख्स अपने मखरूनाना अंदाज में आया तो मुश्किल ही होगी बनाने में अम्मी बाबा को। पर वलीद खानज़ादा ने इसके सारे शक व शुबे दूर कर दिए। हानिया जानती थी इसके माँ बाप सादा मिजाज लोग हैं, जिनको दौलत की रेल पे नहीं करती थी, बल्कि अखलाक और खुश मिजाजी करती थी। बच्चे भी साथ थे, इनकी खुशी भी देखने लायक थी। आहत साहब और यूसरा मुतमईन हुए थे। इनकी खाला ने इजाज़त मांगकर हीरे की अंगूठी पहनाकर रिश्ता पक्का किया। अगले दिन अपने घर के लिए वलीद खानज़ादा ने सबको मदऊ किया ताकि इसका रहन-सहन देखकर घर के बड़े तसल्ली कर लें, जिस पर बड़ों ने मना किया पर इसके मोहब्बत भरे अंदाज़ पर इनकार न कर सके। इसके माँ-बाप का बताया कि वो फ़ॉरेन में हैं, पर शादी तक आ जाएँगे। फिर इसने अपने बिज़नेस की बातें की। अगले दिन वलीद खानज़ादा के घर देखने के बाद वो बेइंतहा खुश और मुतमईन है। कहीं पर भी वलीद खानज़ादा ने ये ज़ाहिर नहीं किया कि हानिया इससे इन्वॉल्व है, बल्कि इसका तासुर यही था कि इसके बच्चों की पसंद है हानिया, जिसको उन्होंने अपनी पसंद बनाया है। हानिया दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसके साथ में कोई बात ना बनी। सब हैरान हुए इसकी खुशनसीबी पर। सुबहान हैरान हुआ किस तरह खुदा ने हानिया के साथ सब काम बना दिए। एक तरफ हानिया से नाराज़गी माँ बाप, जबकि दूसरी तरफ हानिया पर खुश और मुतमईन। सुबहान को दुख था रानिया के लिए, इस अच्छी सी लड़की के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। वो सही से अपनी खुशी एंजॉय नहीं कर पा रही। रानी अपनी बहन के लिए खुश थी। इस तरह किस्मत जागी कि किसी ने सोचा ना था। 2 दिन घर में वलीद खानज़ादा का ज़िक्र होता रहा। हानिया ने अपने बाबा के कहने पर ट्यूशन छोड़ दिया, क्योंकि बहुत जल्द इसे घर जाना था। आज जुम्मे का रोज़ वलीद खानज़ादा अचानक आया था घर पर। वो पहले ही सुबहान से मालूम कर चुका था फ़ोन पर आहा साहब घर पर हैं या नहीं, जिस पर इसे सुबहान ने बताया वो घर पर होंगे। सब मर्द, क्योंकि जुम्मे के रोज़ इनकी दुकानें बंद होती हैं। क्या आप आने का इरादा रखते हैं घर पर? जवाब में वलीद खानज़ादा ने कहा, नहीं, बस ऐसे ही पूछा था। वो बात को टाल गए तो सुबहान ने भी किसी से ज़िक्र न किया इस कॉल का। अब इससे घर देखकर भौंकला गए, क्योंकि इन लोगों के घर का सादा खाना बना था। इनके घर कोई ख़ास तैयारी भी नहीं थी। बच्चे आते ही हानिया के कमरे की तरफ चले गए। सलाम दुआ के बाद वलीद खानज़ादा ने इनके पूछने पर क्या कहा, उन्होंने इसलिए ही नहीं बताया था ताकि वो तकल्लुफ़ ना करें। वो इनके साथ सादा खाना खाने का इरादा रखता है। इसकी सादगी भरे अंदाज़ पर आहा साहब निहाल हुए। यूँ इनके साथ बैठकर सादा दाल चावल और सेवइयाँ खाई, जिसकी तारीफ़ के दिल से न वलीद खानज़ादा ने सबकी इसकी सादगी के दीवाने हो गए थे। हानिया हैरान थी, इस शख्स कोई जादूगर है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू करता है सब पर, हर कोई इसकी बात मानता। आज इनके सामने बैठकर जिस तरह वलीद खानज़ादा ने आहत से कहा कि अंकल, आज मैं आपसे शादी की तारीख लेने आया हूँ। मेरा घर औरत के वजूद से महरूम है। मेरे पास अल्लाह दिया दिया सब है। मुझे सिर्फ़ आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। अगले जुम्मे को
सादगी से निकाह और रुखसती चाहता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ मेरी मजबूरी समझेंगे, इनकार नहीं करेंगे। आपकी तसल्ली हो तो मेरी बात मानें, ना हो तो इनकार कर सकते हैं इतनी जल्दी करने पर। बहरहाल इनकार करने का आपको हक है, आप बेटी के बाप हैं, आपको सारे हक हासिल हैं। मैं आपका बेटा हूँ, मेरी मजबूरी भी समझिएगा। जिस आज़ाना अंदाज से वो कह रहा था, किसी के इनकार की हिम्मत ना हुई। अहमद, समद और राहत को रश हुआ हानिया के लिए। कमरे में खामोशी छा गई। सबा कहवा लाई जो इस घर का दस्तूर था। खाने के बाद इसने सबको सर्व किया। वलीद खानज़ादा ने भी एक कप उठा लिया। सबा ने हैरत से वलीद खानज़ादा को देखा, जिसे देखकर जो मर्दाना वजहात का पेकर था, कोई भी लड़की रश कर सकती थी इसके साथ। पर वो शख्स ना सिर्फ हसीन था बल्कि किरदार और अखलाक में भी बेमिसाल था। वाक़ई हानिया तुम किस्मत की धनी निकली। हानिया तुम्हारी किस्मत खुदा ने सोने के कलम से लिखी है। इस मुल्क का अमीर तरीन शख्स तुम्हारे हाथ किससे आज़ी और मोहब्बत से माँग रहा है। आज शादी की तारीफ़ माँगते वक़्त इसका अंदाज़ कितना सादा और मोहब्बत भरा था। वो वलीद और खानज़ादा और हानिया को एक साथ सोचकर खुश हुई। दिल से तारीफ़ की दिल ही दिल में। अब वलीद खानज़ादा मुंतज़िर नज़रों से देखने लगा हाद साहब को। बेटा तुमने जिस मोहब्बत से मुझसे इल्तिजा की है, मेरा दिल नहीं चाहता इनकार को। पर बेटा जिस सादगी से तुम निकाह और रुखसती की बात कर रहे हो, इसका फ़ैसला मैं अकेला नहीं कर सकता। अपने बड़े भाइयों से मशवरा करूँगा। अगर हानिया को इतराज़ न हुआ तो इंशाअल्लाह कल ही बताएँगे। उन्होंने प्यार से कहा, अंकल जो भी आपका फ़ैसला होगा मुझे मंज़ूर होगा। और एक बात याद रखिएगा, आप जो अपनी बेटी को दे रहे हैं वही मेरे लिए कीमती है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लूँगा इस घर से। अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके बेटे के पास, इसलिए मैं खाली हाथ आपसे आपकी बेटी लूँगा। जैस लेना सौदा करने जैसा है, हम बेटियों का सौदा करने पर यकीन नहीं रखते। वलीद खानज़ादा ने भारी लहजे में कहा, अब इजाज़त चाहूँगा, मेरी ज़रूरी मीटिंग है। इसके नफीस लब वो लहजा किसी भी असीर करने की ताकत रखता था। वो खुश हुए हानिया के लिए। युसरा बेगम भी बहुत खुश थी हानिया के लिए। बेटा बच्चों को रहने दो यहीं, अहा साहब ने मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहा। ठीक है, 1 घंटे बाद ड्राइवर और रज़िया बीबी लेने आ जाएंगी। मुझे इजाज़त दें अंकल, इसने मौदबाना तरीके से कहा। वो झुक गए, इनसे मिला। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, अहद साहब ने कहा और सब मर्दों से मिलता बाहर निकला। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे जाता देखते रहे। इनको अपनी बेटी के नसीब पे रक्श हुआ। इनको इम्प्रेस वलीद खानज़ादा के स्टेटस और दौलत गाड़ियों ने नहीं किया था, बल्कि इसकी आज़ी और इनकसारी ने सबका दिल जीता था। वाक़ई हम दूर से देखकर सोचते हैं, जबकि पास आने पर पता चलता है कौन कितना सादा है। हानिया तुम वाक़ई बहुत खुशनसीब हो जो इतनी चाहत से तुम्हें माँगा जा रहा है। सुभान ने सोचा। घर वालों का फैसला था वलीद खानज़ादा की बात मानी जाए। इसने जिस मान से कहा था, इससे अहा साहब इससे गिरविदा हो गए थे। इनके दोनों बड़े भाई भी राज़ी थे। फिर भी हानिया से पूछा, इसे सादगी पर एतराज़ तो नहीं? इसकी हामी भरने पर अगले जुम्मे को इनका निकाह रखा गया। सब हैरान थे, कहाँ रानिया की शादी की तैयारियों में सुभान और सबा की बात पक्की। अब अचानक हानिया की बात। बहरहाल खुशी का मौका था। तौकीर साहब और सब घरवाले आकर इनको मुबारकबाद दे गए। साथ और नयाब कुछ देर आकर होकर गए थे। निकाह की दावत करीबी रिश्तेदारों को फ़ोन पर दे दी गई। 1 हफ़्ते कैसे गुज़रा पता ही नहीं चला। अपने हिसाब से अहा साहब ने थोड़ी बहुत कपड़े और ज़ेवर बनवाया था, जिस पर भी वलीद खानज़ादा ने प्यार भरा एतराज़ किया, जिस पर उन्होंने प्यार से समझाया, या बेटी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं सिर्फ़। अब आपकी बेटी मेरी ज़िम्मेदारी है अंकल, वलीद खानज़ादा ने कहा। सब रिश्तेदार हैरान थे सुसर दामाद के प्यार पर। खैरियत से निकाह हो गया। रुखसती का वक़्त आ गया। वलीद खानज़ादा के माँ-बाप भी शरीक थे, जिनका सर्द अंदाज़ महसूस किया जा सकता था। पर वलीद खानज़ादा की खुशमिज़ाजी हर चीज़ पर हावी भारी रही। मुल्क के सबसे महंगे डिज़ाइनर सूट में मलबूस हानिया हसीन लग रही थी, दुल्हन बनी। वलीद खानज़ादा सफ़ेद शलवार कमीज़ सादगी में भी भरपूर मर्दाना वजाहत लिए खड़ा था हानिया के साथ। दोनों बच्चे ब्लैक शेरवानी में मलबूस नन्हे-मुन्ने शहज़ादे लग रहे थे। रुखसत होकर हानिया ने वलीद खानज़ादा के साथ महलनुमा घर में कदम रखा। घर पर खामोशी थी। इसे वलीद खानज़ादा के कमरे में बिठाकर हानिया की सास ने कहा, कुछ भी चाहिए इंटरकॉम पर कह देना या रज़िया को भेज दो। कल सुबह हमारी फ़्लाइट है, बिज़नेस के सिलसिले में इटली जाना है। मेरे बेटे और इसके बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। हानिया हैरान हुई अपनी सास की बात पर, जिनका सर्द अंदाज़ इसकी समझ से बाहर था। यहाँ तक इसका कोई जवाब सुने बगैर वो औरत चली गई और उसे जाता देखती रही। मोहब्बतों के रिश्तों में पली हानिया के लिए पहला झटका था। 2 घंटे मुसलसल इंतज़ार के बाद इसकी कमर दर्द करने लगी, पर वलीद खानज़ादा ना आया। बच्चे आए थे, इसे प्यार करके चले गए। रज़िया इनको ले गई, वरना शायद यहीं बैठे रहते। रज़िया ने खाने का पूछा, जैसे जूस का। वो जूस पिए इसे 1 घंटा गुज़र चुका था। इससे पहले वो उठती, इसी वक्त दरवाज़ा खुला। वलीद खानज़ादा दाखिल हुआ। इसे रिवायती अंदाज़ में दुल्हन बनाकर बैठना और इसका इंतज़ार करना हैरान कर गया। मेरे ख़्याल से मिस आनिया मैं आप पर वाज़ेह कर चुका हूँ, इस शादी की अहमियत मेरी नज़र में फिर आपका इस तरह बैठना कोई मायने नहीं रखता। आप जैसी समझदार लड़की से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद ना थी मुझे। वो हैरान हुई इसके बोलने पर। इसके उसकी कितनी तारीफ़ की थी सबने आज। वलीद खानज़ादा ने देखा पर ज़रा ना चौंका, ना इसकी आँखों की जूं चली, ना कोई अनोखा एहसास इसके चेहरे पर। इसकी आँखें लाल इसके दर्द और ज़ब्त की इंतहा बता रही थी। जहाँ से वो गुज़रती थी यूं ही में हर कोई पलट कर देखता था। कितने लड़कों ने इसे प्रपोज़ किया, जिनको वो टका जवाब देती वो हैरान सी थी।
آپ حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ الٹا خوش ہونا چاہیے، میں نے آپ کے خاندان کے سامنے اتنے مان سے رشتہ مانگا، پھر آپ کے بابا کی اتنی آؤ بھگت کر کے راضی کیا جلدی شادی پر، دیکھا تھا کیسے ایک ایک بندہ آپ کی قسمت پر رقص کر رہا تھا، جیسا آپ چاہتی تھی وہی سب کر کے آپ کو یہاں لایا ہوں۔ اب آپ بھی وہی کریں جو میں چاہتا ہوں، یعنی میرے بچوں کو پیار دیں اور کوشش کریں مجھے آپ سے شکایت نہ ہو، کیونکہ ورد خان زادہ اپنے بچوں کے معاملے میں بہت سخت انسان ثابت ہوگا۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ کل امی بابا چلے جائیں گے، آپ کسی اور کمرے میں شفٹ ہو جانا یا اسی کمرے میں رہیں، آپ کی مرضی، مجھ سے کوئی امید مت لگائیے گا۔ جتنا کر سکتا تھا اتنا کر چکا ہوں، اب اور آپ کے گھر والوں کے لیے آپ جتنے اچھے طریقے سے ان کو دکانوں سے فائدہ ہوگا، آپ کے گھر والوں کو میرا نام چننے سے دیکھ لیجیے گا۔ اس سے زیادہ مجھ سے امید مت لگانا، اب آپ کی باری ہے میری امیدوں پر پورا اترنے کی، مجھے مایوس مت کرنا۔ مغل لہجے میں کہتا وہ ہانیہ کو اس کی اوقات بتا گیا۔ یہ کیسا شخص تھا جس نے ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوسری نظر نہ ڈالی، اسی کے اس کی دیوی پر۔ ہانیہ کا دل چھانک سے ٹوٹا، آنکھوں میں چبھن کا احساس ہوا، غرور کے بت پر یہ پہلا پتھر پڑا تھا۔